Good morning, students. This is Roshali Singh, your business studies teacher. Welcome to online session class. So, students, in today's class, we will discuss about insurance. In our previous class, we have discussed about what is insurance. Now, we will discuss about the principle of insurance. The first one is principle of at most God faith. According to this principle, insurance is a contract between the faith. The insured and insurer must disclose all the material facts to each other, and both the parties should not hide any fact related to insurance policy from each other. जो भी इनके बीच फैक्ट्स हों पॉलिसी से रिलेटेड वो दोनों ही शेयर करें, इंश्योरर भी करे और जिसे इंश्योर्ड होना है वो भी करे. If the insured hide any material fact from the insurance company, the debtor on the insurer comes to know about it, then he can refuse to pay compensation. बाद में अगर उसे पता चलता है कि उसके कंज्यूमर ने कि कोई बात कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई है, तो वो एक तरह से वॉल्यूशन होगा उनके कॉन्ट्रैक्ट का और वो उसे कंपनसेशन देने के लिए भी मना कर सकता है. If a person have life insurance policy by hiding the fact that he is a heart patient, and later on if the insured dies of heart attack, then the insurance company can refuse to pay the compensation because the material fact was hidden by the insured. कि अगर जो है आप कोई फैक्ट छुपाते हैं तो कंपनसेशन देने से मना कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी. तो जो ये हमारा प्रिंसिपल है वो फेथ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेथ पे है, तो दोनों ही फेथ मेंटेन करेंगे तभी इंश्योरेंस चल पाएगा. सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. According to this principle, the insured must have an insurable interest in the subject matter of the insurance policy. Without interest taking, an insurance policy is a gamble and fraudulent activity. Law does not permit it. In case of life insurance, the insurable interest comes with the relation of insured with the person taking insurance policy. For example, a person can take life insurance policy for his spouse or for his children, and he cannot take insurance policy for a stranger. किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं ले सकता. वो अपने जो लोग हैं जिनके पीछे उसका इंटरेस्ट है, जिन्हें वो लव करता है, जिसके लिए उसका अफेक्शन है, उनके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमिसेस, दैन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री बिकॉज ही हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस. आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको वो पॉलिसी लेने के लिए आपके पास कोई वजह होनी चाहिए. इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. In the case of fire insurance, the insurable interest must be present at the time of taking the policy as well as at the time of the loss of the subject matter. In all other types of insurance, including marine insurance, and the insurable interest must be present at the time of loss of the subject matter. किस वजह से लॉस हुआ? अगर आपने फायर के लिए इंश्योरेंस लिया है तो आपका जो लॉस हुआ हो वो फायर की वजह से हुआ हो, तब ये यहाँ पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का यहाँ मतलब है जो आपका इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है, ये होना चाहिए वहाँ पे. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. According to this principle, insurance is not a contract of making profit. The purpose of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he was before the law. ये कोई प्रॉफिट मेकिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. इसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर को पुराने उसके फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस ले आना चाहती है. A person insured his factory for 2 lakhs against fire. Due to fire, he suffered the loss of 1 lakh. Then the insurance company will compensate him 1 lakh only, not the policy amount of 2 lakhs. अगर 1 लाख का उसको नुकसान हुआ है तो वो कंपनी 1 लाख का ही आपको कंपनसेशन देगी, 2 लाख का नहीं देगा. अगर आपने 2 लाख की पॉलिसी कराई है तो वो आपको 2 लाख का नहीं देगा. द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉस ड्यू टू द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. इंश्योरेंस पॉलिसी में हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लाइफ की कोई कीमत नहीं होती. तो उस समय जितना आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जितने अमाउंट की ली होती है, मैच्योरिटी
के बाद वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज corollary of the principle of indemnity. According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurer will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss. Separately, he not claim total loss from the each insurer. The insurer contributes to the total loss in the proportion to the amount assured by each. जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है ये है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट मैटर पे एक से ज़्यादा जगह से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो ऐसा नहीं है कि सब जगह से आपको 1-1 लाख रुपए मिल जाएंगे। जो जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, इंश्योरर आपके रहेंगे, वो आपको मिला के जो है इंश्योरेंस का पॉलिसी का पैसा देंगे। जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 30 लाख देगी, कोई 30,000 देगी, कोई 10,000 देगी, वो मिल के आपको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ subrogation. According to this principle, after paying the compensation, the insurer steps into the shoes of insured. In the other words, when the insured is compensated from the loss or damage of the property insured by him or her, the right of ownership of such property passes to the insurer. अगर फायर की वजह से आपकी फैक्ट्री में फायर हो जाता है, फायर की वजह से आपका नुकसान हुआ है, तो जो है वहाँ पे जो जला हुआ सामान है, अगर आपको उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो वो जो जला हुआ सामान है जिसको ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी अपने अंडर में ले लेगी, वो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप में आ जाएगी कि वो उसको बेच के इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए कुछ पैसे अर्न कर सकती है। तो एक बार अगर आपको कंपनसेशन मिल गया तो ओनरशिप उस सामान की, जो डैमेज सामान की ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ cause proxima. According to this principle, the cause or reason for the loss must be related to subject matter of the insurance contract. If loss is due to some other cause, then the insurer can deny to pay the compensation. अगर आपने अपने सामान पे इंश्योरेंस लिया है, आपने वेयर हाउस में आपके सामान रखा हुआ है, उसके थेफ्ट पे इंश्योरेंस लिया हुआ है कि अगर ये चोरी हो जाएगा सामान तो उस पर इंश्योरेंस है आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो अगर वही सामान आपका जल के ख़राब हो जाता है, फायर की वजह से ख़राब हो जाता है, तो वो सामान जो है वो वहाँ पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो चीज़ें लिखी रहेंगी, जो कॉजेज़ लिखी रहेंगी कि अगर इस कॉज की वजह से आपका नुकसान होता है तो ही आपको कंपनसेशन कंपनी प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। According to this principle, the insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he has taken care without taking the insurance policy. अब ऐसा मतलब नहीं है कि आपने इंश्योरेंस ले लिया है तो आप अपने सामान की देख रेख नहीं करेंगे। आप उसको उसकी देख रेख वैसे ही करनी है जैसे आप उसको पहले देख रेख करते थे जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। एग्जाम्पल इसका, इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस एंड when fire breaks down, he should take all measures to stop the fire and minimize the loss rather than watching the fire, because he will get compensated from the insurance policy. ऐसा नहीं कि उसके घर में आग लग गई है और उसके पास इंश्योरेंस है घर का तो वो आग बुझाए ही ना, ऐसा जो है उसे नहीं करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस है दो तरह का, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली है एंड रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट है। अगर आप जल्दी मर जाते हैं, कोई पर्सन है जो जल्दी इसको है डर है कि कहीं मैं जल्दी गुजर जाऊंगा तो मेरी परिवार को फाइनेंशियल सिचुएशन में कौन हेल्प करेगा, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में लोग जो है इंश्योरेंस लेते हैं। और फिर एक और इंश्योरेंस है रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, कि लोगों को जो होता है कि अगर मैं बहुत देर में मरूंगा तो बाद में मेरा जीवन कैसे चलेगा, हाउ विल आई लिव माई लाइवलीहुड, क्योंकि बूढ़े हो जाने पे कोई वर्क नहीं कर पाता है।
तो दोनों ही केसेस में जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लोग लेते हैं, ताकि पहले केस में है कि उनकी फैमिली को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, और दूसरे केस में है कि पर्सन को खुद फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके उसके ओल्ड एज में। जनरली पीपल जो है वो इसी दोनों वजह से जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी रिलाइन ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ मॉरालिटी एंड मॉर्फिडिटी। जो हमारी जब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो लाइफ इंश्योरेंस देती है और आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट प्रीमियम जिसको कहते हैं उसे हर महीने या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली आपको कंपनी को देना होगा, जो कि कंपनी पर्सन के मरने के बाद या फिर उस पॉलिसी के पूरा होने पे, जो भी पहले है, या तो वो पर्सन मर जाएगा तब उसको पैसे मिल जाएंगे, या तो वो ज़िंदा है और उसकी पॉलिसी कंप्लीट हो गई, उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, तब उसको पैसे मिल जाएंगे। जो है ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो आपका हेल्थ चेकअप करती हैं, आपकी इलनेस के बारे में पता करती हैं, जो मैंने कहा मॉर्बिडिटी जो है चेक करके आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देती हैं। डेथ वगैरह का आपका पता करेंगी कि क्या आपकी इलनेस है, क्या आपकी प्रॉब्लम है। और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो 40 ईयर्स के बाद नहीं मिलती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो कंपनी होती है वो लॉस में चली जाती है। इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट। In life insurance contract, the premium can be paid monthly, quarterly, half yearly, annually, and the insurer pay the policy amount at the death or on the expiry of a specific time period, which is also called maturity time of the policy. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन नहीं एप्लीकेबल होता है। इंडेमनिटी था कि जो कॉस्ट है जिसके लिए इंश्योर किया गया है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का बेस प्रॉफिट नहीं है, तो उसको फिर से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस ले आना, वो था हमारा इंडेमनिटी। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसने जितनी जगह से लिया होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसे उतनी जगह से मिलेगा। और सेग्रीगेशन भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंश्योर जो है यहाँ पे अगर किसी की मौत हो जाती है तो कोई उसका सामान बेच के आप अपने लिए वो नहीं कर सकते, कुछ भी आप एलिमेंट नहीं वो कर सकते हो, कुछ भी रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी को नहीं मिल सकता है। मेन एलिमेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, कि यहाँ पे भी जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ पे, ये फेथ पे होता है। और यहाँ पे दोनों को ऑनेस्ट रहना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी और जो पर्सन है उसको भी, ताकि दोनों को अच्छा बेनिफिट मिले और जो पर्सन है उसकी हेल्थ इंश्योर हो। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज़ नॉट नेसेसरी। जो इंटरेस्ट है, जो टॉपिक है हमारे इंश्योरेंस लेने का, वो पता होना चाहिए कि हेल्थ है या डेथ है। हो सकता है कि वो मैच्योर होने पे वो चीज़ प्रेजेंट ना रहे। क्यों प्रेजेंट ना रहे? कि हो सकता है डेथ पे हमने लिया हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हो सकता है उसके पहले ही, उस पर्सन के मरने से पहले ही उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई रहेगी, तो उसको पैसे दे दिए जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड, दैट इज़ वाई अमाउंट पेएबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एश्योर्ड इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। ये पहले से ही एडवांस में फिक्स होता है कि कितना पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है। नाउ देयर इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कितनी तरीके की हैं। पहले होल लाइफ पॉलिसी है। इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेएबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। जब तक डेथ नहीं होगी तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। द सम दैन बिकम पेएबल ओनली टू बेनिफिशरीज। जो नॉमिनी होगी या फिर जो उत्तराधिकारी होगा उसे ही पैसे मिलेंगे। ये एक फ़िक्स पीरियड के बाद पेएबल हो। प्रीमियम आपको एक फ़िक्स पीरियड से 20 साल या 30 साल तक इसका देना होता है। इफ़ द प्रीमियम इज़ पेएबल फॉर अ फिक्स पीरियड द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ द एश्योर्ड। अगर आपने फिक्स पीरियड तक अपने पैसे दे दिए तो एश्योर्ड की डेथ होने पे आपको पैसे मिलेंगे।
एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस अश्योरेंस पॉलिसी। The insurer or insurance company undertake to pay a specific sum when the insured attain a particular age or on his death whichever is early। जो हमने पढ़ा कि आप जो है या तो डेथ हो जाएगी तब उसको मिल जाएगा या फिर उसकी पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी तब मिल जाएगा, जो भी पहले आ जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको जो है एक सम जो है वो पर्टिकुलर एज तक आपको पे करना होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, द पॉलिसी इज़ टेकन अप बाय 2 or more पर्सन। The assured sum or policy money is payable upon the death of any person to which survive or survivors. Usually this policy is taken up by the husband and the wife jointly or by 2 partners in partnership firm। यहाँ पे 2 से 3 लोग जो है पॉलिसी लेते हैं और जब किसी एक की मौत हो जाती है तो अगले को पैसा मिल जाता है। एन्युटी पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी द assured sum or policy money is payable after the assured attain a certain age in monthly, quarterly, half yearly और annual installment। कि अंडर दिस पॉलिसी अश्योर्ड सम जो है आपको मिल जाता है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअली हो। द प्रीमियम इज़ पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड बाई अश्योर्ड। या तो आप टाइम पीरियड तक लंबे समय तक प्रीमियम देते रहो या एक ही बार आप प्रीमियम दे दो। दिस इज़ यूज़फुल दोज हु प्रिफर ए रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है सर्टेन एज के बाद, वहाँ ये बहुत ही सुटेबल है क्योंकि आपकी पॉलिसी पूरी होने के बाद वो मंथली आपको या ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली आपको कुछ अमाउंट देते रहते हैं। चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज टेकन बाय ए पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। एजुकेशन या फिर मैरिज के लिए ये पॉलिसी ली जाती है। द एग्रीमेंट स्टेट दैट अ सर्टन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस व्हेन द चिल्ड्रन अटेन अ पर्टिकुलर एज। कुछ समय तक आपको इसका प्रीमियम भरना होगा, फिर कंपनी कहती है कि जब आपका बच्चा 21 साल का हो जाएगा या 18 साल का हो जाएगा, उसकी सर्टेन एज पे होने पे उसको पैसे मिलने लगेंगे। नाउ देयर इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। Life insurance is a contract whereby the insurer, in consideration of premium paid, undertake to make good any loss or damage caused by the fire during a specific period up to the amount specified in the policy। कि एक पार्टी होगी जो इंश्योरर है और जो इंश्योरर जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने कंज्यूमर को इंश्योरेंस देगी सामान पे, गुड्स पे, कि वो जब अगर फायर से में कोई डैमेज होता है एक पीरियड के लिए ये होगा, अगर उस पीरियड में कभी भी डैमेज होता है तो उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको कवर करेगी, उसको लेगी। नाउ the contract containing the terms and the condition is known as policy। Or generally the fire policy contain the name of the parties, description of insured property, जिस प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस मिल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, the sum for which the property is insured, क्या जो है पैसे है, कितने पैसे पे प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस है, कितना प्रीमियम पेबल है और किस पीरियड तक ये इंश्योरेंस मिलेगा, जनरली 1 year, 2 year, whatever that will be mentioned in the contract। The fire insurance provides protection against the loss or damage by fire, lightning and explosion। Fire means actual fire and ignition and it should be accidental, not intentional। ये एक्सीडेंट होना चाहिए, जानबूझ के ऐसा नहीं कि आप फायर लगा दें, आप आग लगा दें और आप सोचें कि आपको पैसे मिल जाएं। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज बाई रॉयट्स, सिविल स्ट्रिफ, रिबेलियन और फॉरेन एनिमी। फायर पॉलिसी में जो लॉस है, लॉस बाई फायर मतलब अगर कहीं दंगा हो गया और कहीं पे रिबेलियन हो गया, रिवोल्ट हो गया, उसके कारण अगर आगजनी हो गई तो भी आपको फायर पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होगी। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ दी लॉस। अगर आपने पॉलिसी ली है फायर की तो जब आपका लॉस हो तो वो फायर से ही हो।
तभी आपको पॉलिसी के बेनिफिट मिलेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ, good faith, at most good faith. So insured must disclose all material details of the property to the insurance company. The principle of indemnity is strictly applicable on fire insurance, as insured get only loss amount or policy amount whichever is less. लॉस का अमाउंट या पॉलिसी का अमाउंट जो भी कम रहेगा वही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या प्रॉफिट देने के काम नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी हमें क्या कहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का वर्क नहीं होता है, ये वर्क होता है कि आपको जो लॉस हुआ है उस लॉस को कवर किया जा सके। नेक्स्ट इज कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड। लॉस अगर आपका हुआ है फायर की वजह से तभी वो चीज़ आएगी, उस पर आपको कंपनसेशन मिलेगा। जो हमारा क्या था, हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा था कि कॉज और रीज़न जो है वो आपने जो आपको जिसके लिए पॉलिसी मिली है वो चीज़ सेम होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट under which the insurer undertake to indemnify the insured in manner and to extend thereby agreed against marine losses. Marine risks are the perils of sea, that is storm, collision, capture, seizure, sinking of ship, etc. जो हमारा मरीन कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑब्वियसली अरेंजमेंट होगा इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर जो इंश्योर्ड है उसके बीच, जहाँ पे मरीन लॉसेस के लिए आपको कंपनसेशन पे करना होगा। स्ट्रोक मतलब अगर तूफ़ान आ जाता है, कोलिजन मतलब आपकी शिप ध्वस्त हो जाती है, कोई कैप्चर कर लेता है, कहीं आप सीज हो जाते हैं या फिर आपकी बोट डूब जाती है, इस सब पे आपको मरीन इंश्योरेंस मिलता है। Marine insurance is contract between the insured and insurer. The insured may be cargo owner or ship owner or freight receiver. जो इंश्योर्ड है, जो ले रहा है इंश्योरेंस, वो कोई भी हो सकता है। कार्गो ओनर का मतलब है जिसका सामान है। शिप का ओनर भी हो सकता है या फ्राइट रिसीवर भी हो सकता है कि जिसको ये चीज़ें रिसीव होनी है। द इंश्योरर इज़ ऑल्सो नोन एज अंडर राइटर। इंश्योरर को यहाँ पे अंडर राइटर भी कहेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे अंडर राइटर भी कहेंगे। द इंश्योर्ड पे अ पर्टिकुलर सम विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम पे करना होगा इन एक्सचेंज फॉर अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर टू इंडेनिफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस और डैमेज कॉज बाई सी प्रिल्स, कि अगर सी में कोई प्रॉब्लम होती है उसके अगेंस्ट उसे जो है वो प्रीमियम पे करेगा, उसके अगेंस्ट उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। नाउ कार्गो, द फर्स्ट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसीज़ हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज़ कार्गो इंश्योरेंस। इन दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड द कार्गो और द गुड कंटेन इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स। इसमें जो सामान आपके जहाज़ में रखा होगा उसका इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट इज़ हल इंश्योरेंस। अंडर दिस द होल शिप इज़ इंश्योर्ड। It covers the insurance of the vessels, equipment, furniture, fitting, tools, machineries, fuel, engine, stores, etc. Generally, owner of the ship undertake hull इंश्योरेंस, जिसमें शिप की हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट इज़ फ्लाइट इंश्योरेंस। फ्लाइट इंश्योरेंस क्या है? इफ़ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू द डैमेज और लॉस इन द ट्रांजिट, द शिपिंग कंपनी इज़ नॉट पेड फ्लाइट चार्जेस। Freight insurance is for reimbursing the loss of freight to the shipping company that is insured. कि अगर ट्रांजिट में मतलब अगर बीच में आपका इंश्योरेंस है, आपकी शिप है, वहाँ पे कुछ डैमेज हो जाता है तो उससे रिलेटेड है हमारा फ्राइट इंश्योरेंस। नाउ वी विल डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम। इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द लॉस, दोनों समय। यहाँ पे भी इंश्योरेंस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसके बेसिस पे है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ पे है कि दोनों ही पार्टीज़ अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करें, ऐसा नहीं कि किसी से कुछ छुपाएं।
द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कि लॉस का कंपनसेशन आपको मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। द कंपनसेशन इज़ पेड ओनली व्हेन द लॉस इज़ ड्यू टू फायर। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्टली अप्लाइड। यहाँ पे कॉज जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए जिसके लिए दिया गया है आपका जो है इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन रिफर्स टू exchange of ideas, view, message between two or more person. Mainly there are two types of communication. Communication का मतलब है कि आप दो लोग एक दूसरे से आइडियाज़, व्यू, मैसेज ये सब एक्सचेंज कर रहे हैं। पहला है हमारा पोस्टल सर्विस, दूसरा है टेलीकॉम। तो पोस्टल सर्विस हम जानते हैं कि हम पोस्ट करते हैं, तो पोस्टल सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स हैं। गवर्नमेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज। जो आप पोस्ट कर देते हैं जिसको हम हिंदी में डाक कहते हैं। ऑल पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। Along with postal services, nowadays very financial services are also offered by postal departments. Post offices have also started speed post service to complete the courier service. स्पीड पोस्ट भी होने लगा है जिसमें हमारा सामान जल्दी से पहुंच जाता है। पोस्टल ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन एंड द नेक्स्ट इज़ पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल। इसके ड्रॉबैक्स बस दो हैं कि स्लो इन स्पीड है एंड ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर है, कि मतलब बहुत ही स्लो काम होता है और वहाँ पे डेस्क टू डेस्क वाली बहुत ही ज़्यादा सर्विस है कि आपको एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे भेजेंगे। और इसकी वजह से जो प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लोग जो हैं उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। और ये जो हमारी गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज है ये लेट होती हैं, इनमें एफिशिएंटली लोग वर्क नहीं करते हैं, इसकी वजह से लोग इन्हें छोड़ रहे हैं। देन there are the various facilities provided by postal department are broadly characterized as follows. The first is financial facilities. वेरियस सेविंग स्कीम प्रोवाइड कराती है हमारा पोस्ट ऑफिस। आप वहाँ पे जाके पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड ले सकते हैं, किसान विकास पत्र ले सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम्स चलती हैं, वहाँ पे सेविंग अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट है जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, मनी ऑर्डर फैसिलिटी है। देन मेल सर्विसेज भी हैं। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विथ नॉर्मल ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन facilities. They provide security of transmitted articles and insurance facility that cover all risk in the cause of transmission by post. मेल सर्विसेज जो ऑफ़र करती हैं वो क्या क्या हैं? अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, दिस सर्विस इज़ नाउ रियली यूज वेयर एज दिस सर्विस वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बिफोर कोरियर सर्विस। इन UPC the sender will deliver the parcel or letter with ordinary post at specified counter or post office at nominal cost say ₹1 for 3 envelope and proof of postal address। तो जो चिट्ठी विट्ठी जाती थी पहले वो इसी के थ्रू जाती थी। रजिस्टर्ड पोस्ट, senders affix more postal stamp on envelope and deliver at the counter of the post office and obtain receipts. Then the postal authority will deliver that parcel or letter to the address only, whereas letter sent under UPC may reach address or may not. UPC वाला जो है हमारा हो सकता है एड्रेस पर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन ये रजिस्टर्ड पोस्ट वाला पहुँचता था क्योंकि इस पर मोर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टैम्प्स लगे होते थे और एड्रेस वगैरह प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती थी, तो ये जल्दी पहुँचता था। इसे जो है काउंटर पर ले जाके आप जमा करिए पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से वो ले जाके इस पार्सल को डिलीवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ पार्सल पोस्ट। It is a service of postal department for sending parcel through the post across the country as well as outside the country. It is the most economical way of sending the parcel. Next is speed post. Speed post हमें पता है कि बहुत तेज़ी से भेजा जाता है, इसमें आप मेल्स भेज सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है।
ना कोरियर सर्विस जो है बहुत सस्ती होती है पोस्ट ऑफिस की, ये जो है जल्दी और बहुत रिलायबल होती है और आप जगह जगह इससे सामान भेज सकते हैं। अदर सर्विसेज क्या हैं? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र है एंड ई बिल पोस्ट फैसिलिटी है जो हमारी कम्युनिकेशन में हमें जो है पोस्टल सर्विसेज में मिलती है। थैंक यू क्लास।